So first thing today that we are going to discuss is, again I am starting with the decimal. हाँ, decimals के साथ ही मैं continue करूँगा. In our last class we have started with that one, types of decimals we are having. Okay, so same thing I am starting with here also, types of decimals. Just a minute. Yes, types of decimals we are having. Okay, the first one I told you, that was terminating. Okay, terminating decimal. Terminating means it is ending completely, like we are having something 0.5, okay, then 0.4 or 0.8, okay, you can write, or 1.25, like this. These are what? Terminating decimals. Okay, ये सब terminate means end हो गया है, वो आगे नहीं repeat हो रहा है. Then second I have told you is what? Non terminating repeating. Repeating decimal. Okay, non terminating बट रिपीटिंग दिस टाइम. हाँ, ये वाले क्या होते हैं, रिपीट होते चले जाते हैं. मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था, लाइक इफ वी आर डिवाइडिंग 20/3, बट वी आर गेटिंग लाइक दिस 6.6, then 6, then 6, then 6. It will go on, कभी एंड नहीं होगा, वो ऐसे मूव होता चला जाएगा. लाइक इफ आई एम डिवाइडिंग 20/7 और समथिंग, है ना, तो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है. सपोज आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस 7.41, देन 1 1 1, बार बार यही रिपीट होता जा रहा है. या फिर हमारे पास कुछ ऐसे आ जाते हैं 3.2636363. So all these are what? All these are repeating one, terminating, non-terminating and repeating. Then third case what we were having is, that was non-terminating, non-repeating. Okay, that was the third case we were having, non-terminating, And not non-terminating and repeating. non-repeating. 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 Okay, so this was the third case we were having, non-terminating, non-repeating wala. Now just in this one what we were having, non-terminating, non-repeating में क्या क्या था हमारे पास, like if I am having a number 3.14, then 3.143144, okay, then 145 डॉट डॉट डॉट. देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. वी आर हैविंग 143 फर्स्ट, देन 144, देन 145. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. देन ऑल्सो द सेम केस इफ वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2.63630. Okay, so 6300, like this. So this is the third kind of decimals we are having, non terminating, non repeating. हाँ, देखो बेसिकली क्या है ना, इन तीनों चीज़ों पे तुम्हारा बहुत कुछ डिपेंड करता है, तीन डेसिमल फॉर्म्स पे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब इस पे कैसे डिपेंड करता है वो चीज़ समझेंगे कि हम लोग इससे क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. देखो फर्स्ट केस लेता हूँ मैं. फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, जब टर्मिनेटिंग वाला था. If I am having a terminating number, terminating digits we are having, that means what? Suppose I am taking the first one from here, it is 0.5 na. I am taking this 0.5 and you are converting this 0.5 in the form of P by Q. You can easily convert. कैसे convert करोगे? You will see after the decimal you are having only one digit. Okay, so 5 after by the 10. decimal there is only one digit. You will remove this decimal. You will take 10. Then 5 1 ja, 5 2 ja. You will be writing only 1/2. That means you can convert this one. तुम यहाँ पे convert कर सकते हो इस वाले को. It will be 1/2. Same thing. If I am having this 1.25, 1.25, I am having this one 1.25. Now after the decimal I am having how many? Two digits are there, so I will remove this decimal from here. I will get 100 in the denominator. Okay, so it will be what? 125 by 125 by 100. Okay, 125 by 100, you can cancel it out. So 25 5 ja, 25 4 ja. Okay, so it will be what? 4 4
5 5 by just 4. a 5 minute. by 5 by 4. Yes. 5/4 you are getting. Okay, you will write here 5/4. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली कन्वर्ट. तुम लोग ऐसे ना कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू आर हैविंग अ टर्मिनेटिंग वन. देखो टर्मिनेटिंग होगा ना तो तुम लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. जस्ट सिंपली यू विल टेक द नंबर ऑफ जीरोज इन द डेनोमिनेटर कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तुम नंबर ऑफ जीरोज ले लोगे एंड यू कैन कन्वर्ट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. But now that we are going to discuss is most important. When we are having non-terminating, देखो non-terminating अगर मेरे पास आ रहा है 3.62 again 62 and dot dot dot. Now I don't know. मेरे को ये नहीं पता है how many digits, how many zeros I have to take in the denominator because it is repeating unlimited times ना. So I can't do it straight. अबे ऐसे नहीं कर सकता that I will be putting here zeros. सर मैं 6 जीरो लगाऊंगा क्योंकि आपने 6 लिखा है. No, it is not like that. ये wrong हो जाएगा. You can't do this method for this one. If you are having something that is non-terminating but repeating, ध्यान से देखो इसको, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देन ऐसे केस में क्या करना होता है. अब इसी के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस होगा कि इसमें हम क्या करते हैं. देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम. वी विल टेक वन एग्जांपल हियर. सपोज आई एम टेकिंग 3.25 तो देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है. सबसे पहली चीज है कि तुम लोगों को ये देखना है कि रिपीट क्या हो रहा है. ओनली 5 इज रिपीटिंग, 2 रिपीट नहीं हो रहा है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस वन कि रिपीट क्या हो रहा है. सो ओनली 5 इज रिपीटिंग, 2 का कोई मतलब नहीं है. 2 इज नॉट रिपीटिंग देयर. सो दैट मीन्स व्हाट, आई विल बी राइटिंग इट एज 3.25 बार. ओनली आई एम पुटिंग बार ओवर दिस 5. यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ. ओनली आई एम पुटिंग बार ओवर 5. 2 के ऊपर मैंने बार नहीं लगाया है. वाई आई एम नॉट पुटिंग बार ओवर 2? Because 2 is not repeating. Only 5 because is it is repeating. not So the repeating. thing which is Sir, because 2 is repeating, not repeating. जो रिपीट हो रहा है ना सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाना है. ओके सो यू विल बी पुटिंग बार ओवर द थिंग 5 हियर. नाउ एज्यूम इट. इसको ना व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. देखो हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेके आना है उसको. एनी हाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. तो अब भी हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि सर डेसिमल रिमूव करके 2 जीरोज लगा लेते हैं नीचे. नो, वो नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को नहीं पता ये 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो वी विल नॉट बी पुटिंग एनी जीरोज. व्हाट वी विल डू, हम इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल श्योरली बी देयर इन योर एग्जाम. 100% आएगा. हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट करते हैं. एज्यूम कर लो लेट x इज इक्वल टू 3.25 बार. ओके सो दिस इज फर्स्ट थिंग यू विल बी टेकिंग, x इक्वल्स टू 3.25 बार. नाउ आफ्टर द डेसिमल, देखो डेसिमल के पहले कोई भी नंबर है चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आफ्टर द डेसिमल ध्यान से देखना, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक इज आफ्टर द डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स विदाउट बार इज देयर. कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जिस पे बार नहीं है. ओके वी आर हैविंग ओनली 1 डिजिट दैट इज विदाउट बार, है ना. ओनली 2 इज देयर ना. सो ओनली 1 डिजिट इज देयर दैट इज विदाउट बार आफ्टर द डेसिमल आई एम टॉकिंग अबाउट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. वाई आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 10 ओनली, because after the decimal only 1 digit without bar is there. So 1 digit means I will be multiplying by 10. लेकिन अगर 2 digit होता, suppose मेरे पास होता 100 sir. हाँ 3.165. Suppose I am having this one 165. Now like this one. Okay. Then what I would have done, तब मैंने क्या करना था, अगर मैं कहता यहाँ पे 5 पे बार है बट 1 और 6 पे नहीं है, देन आई विल बी मल्टीप्लाइंग विद 100. उस केस में 100 से मल्टीप्लाई करना था. ओके बट नाउ वी आर हैविंग ओनली 1 डिजिट तो 10 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस x विद 10 देन इट विल बी 10x. यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 10x. एंड व्हेन आई विल बी मल्टीप्लाइंग 3.25 बार with 10,
then it will be 10. what? 32.5 32.5 बार. 32.5 बार. देखो ये डेसिमल जो है ना 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए एक डिजिट इधर शिफ्ट हो गया है. ओके, डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया है 1 डिजिट से. सो इट विल बी 32.5 बार. नाउ फर्स्ट स्टेप इज ओवर. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, नाउ आफ्टर द डेसिमल, सी, before the decimal all digits are there which are having no bar, and after the decimal all digits are there which are having some bar. So this is our first equation. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी. तो ये चीज ध्यान रखो, फर्स्ट इक्वेशन किसको बनाना है? फर्स्ट इक्वेशन शुड बी हैविंग ओनली बार डिजिट्स एट द आफ्टर द डेसिमल. डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाली डिजिट वाली को फर्स्ट इक्वेशन लेना है. ठीक है. अब देखो, अगर कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में तुम लोगों को ऐसे दे देंगे 0.45 बार, 0.45 बार. तो तुम लोग इस केस में क्या करोगे? अगर तुम लोगों के पास 0.45 बार है, तुम लोग इसको लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0.45 बार. यहां पे तुम इसको डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे. समझ आ रहा है? इसको डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे क्यों ले रहा हूं? Because it is having both digits that are having bar only. तो यहां पे हम ले सकते हैं इसको. ठीक है. लेकिन यहां पे देखो, अगर मैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो इसमें मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं एज्यूम कर सकता था. आई कांट टेक इट फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक डिजिट विदाउट बार है और एक डिजिट विद बार है. सो फर्स्ट इक्वेशन शुड बी हैविंग बार आफ्टर द डेसिमल. ये चीज ध्यान रखना है. ओके. नाउ हाउ मेनी डिजिट, अब देखो सेकंड स्टेप चेक करेंगे. हाउ मेनी डिजिट्स विद बार इज देयर? कितने डिजिट्स हैं विद बार? 1, sir. ओनली 1 अगेन, Oh, है ना? one digit. 1, sir. that means again I will be multiplying with 10. So multiply both sides by 10 by 10. Again we will be multiplying the both side by 10. हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. So that means what? This 10x 100x. multiply by this 10, it will be 100x. 100x. Okay. Then now if I will be 320 multiplying this sir. side, देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसको बहुत ध्यान से समझना. This is 32. This writing pad sometime it create problem. 32.5 bar. And you know what is the meaning of 32.5 bar? तुम लोगों को अच्छे से पता है ये चीज. It means 32.5555 unlimited times this 5 will be there. So that means what? If I am multiplying 32.5 bar by 10, I can take this decimal. इस डेसिमल को कहाँ पे लेके जा सकता हूँ? एक और डिजिट राइट साइड. I can take it one more digit right side, to the right side. So it will be what? 325. 325. 325.5 5 bar. Point bar. five bar. This will be 325.5 bar, and this will become our second equation. Again 5 bar will be there क्योंकि वो unlimited time है, so it will be there. Now this is our second equation. So now what you need to do? अब तुम लोगों को subtract करना है. Subtract your first equation from your second equation. Subtract first from second. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो देखो, दिस इज 100x हियर, दिस इज 90x, सॉरी 10x. सो 100 minus 10, this is 10, this is 100. So 100 minus 10, it will be 90x. And then 90x. 325.5 bar minus 32.5 bar. 5 bar to 5 bar cancel, 0. 5 Cancels. bar minus 5 bar, 0. 325 minus 32. So 5 minus 2, it will be 3. And you will be 293, sir. getting 293. 293. So this is you are getting 293. So what is the value of x you are getting? It is 293 divided by 90. 293 divided by 90. So this is the value of x you are getting. That means what? देखो starting से check करेंगे अब.
पहले हमने x क्या लिया था, व्हाट वाज x इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे x क्या था, 3.25 दैट वाज 3.25 3.25 bar. दैट इज इन डेसिमल फॉर्म। वो किस फॉर्म में था, डेसिमल फॉर्म में। एंड नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस x in the form of p by फ्रैक्शन q। सो दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग। सी फर्स्ट यू हैव टू एज्यूम इट इक्वल टू x, ओके, x और y यू कैन टेक एनी वेरिएबल, कोई भी ले सकते हो। देन you have to check if there is any digit without bar after the decimal, उसको रिमूव करना है। विदाउट बार वाली डिजिट को लेफ्ट साइड ले आना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड, by multiplying with 10, 100, any number. Then second step is what? You will be multiplying with, again, see, you have to check how many digits with bar are having. If one digit is there, 10 से multiply करो, 2 is there, 100 से करो। Now you can 100. check your answer also, देखो। और एक और चीज, अगर ये लास्ट में कैंसिल होता है, इफ इट इज कैंसिलिंग समवेयर हियर, अगर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल भी करना है, बट ये कैंसिल नहीं हो रहा है। स्टिल आई कैन चेक माई आंसर, मैं अपना आंसर चेक कर सकता हूँ। देखो, इफ आई विल डिवाइड 293 बाय 90, 90 से डिवाइड करेंगे, सो 93 जा, it will be 270. So how much I am getting? 2 3. Okay, then I will put decimal, then I'll get 1 0. So 92 ja, how much I am getting? It is 180. 180 Okay, so now how much I am left with? 50, because decimal is there, so I can get one more 0. Then 95 ja, how much I am getting? Sorry, 5, 450. this is 5 ja. Okay, so it is 450, so I'm getting 50. Okay, then again 9, again 0 will be there, and see, every time 2 5 5 5 will come, so that means what, our answer is correct. If I'm dividing 293 by 90, I'm getting 3.25555 like this, many times 5 will be there. So this is the process you will be following, ऐसे process follow करना है to convert in the form of p by q. And which type of decimal you are converting here? कैसे decimal को convert किया है तुमने? Sir, You are converting non-terminating one. repeating Non-terminating repeating. Okay, taking one more example. So I'll delete all these things. हाँ, सर अगर बार वाला लिए तो नहीं होगा क्या? okay, so now see, suppose we are having a question that is 0.314, and this 1 and 4 is having bar this time. Suppose this is the case. So first we will take let x is equal to 0.314 bar. Okay, now again, how many digits without bar is there? Only one is One, there, sir. so we will multiply both sides by 10. sides by 10. Okay, 10 से multiply करेंगे, because only one digit is there without bar, ये 3 है सिर्फ. So that means what? It will be now 10x will be equal to what? 14 bar. 3.14 1 4 bar. bar. Okay, this will be there when we will multiply it with 10. Now how many digits with bar is there? कितनी digits हैं जिन पे bar है? Two There are digits. 2 digits, so we will be Two digits. multiplying with 100, because 2 digits are there, so we have to multiply with 100. Multiply both sides by 100. 100 से multiply करेंगे. Okay, so when you will multiply, it will be 1000, because 10x, 1000. देखो ये ध्यान रखना है, it is 10x and you are multiplying with 100, so 10 into 100, it will be 1000x will be 1000. equal to what? 314.14 bar. 14 bar. See, this is our first equation, जो ऊपर वाला था ना, जिसमें हमने एक बार क्या किया था, विदाउट बार वाली 10 डिजिट को से। रिमूव कर दिया था. That was first equation. This is second equation. So now our answer will be what? Subtraction. After subtracting, we will get subtracting first from second. Okay, so we are getting first from Second equation. second one.
subtracting first from second, so it will be what? 990, sir. 990 x. X. And here 14 And bar, three 14 bar will cancel. 313, 314 sir. minus 3, 313. 3. So that means what? Our answer will be x will be equal to 313 upon Sir, 990. If possible, cancel it out. Otherwise, you can leave your answer. X will be 313 divided by Sir, it will 990. be 311, This is sir, your because answer. 311, If possible, you have to Yes, cancel sir. it out. Yes, Possible sir, it हुआ is तो cancel 311, out करना है. Otherwise, Sir, it there is is Sir, no need. 311. Cancel नहीं करना 311, है. sir. हाँ, that will be 311. That I have done a mistake. 314 minus. I thought it was 1 there. So that will be 311. So if possible, you cancel it out. Otherwise, the answer will be x equals to 311 divided by 990. Okay. So just remember the things, some multiplication, subtraction. These things you should care about. And very good, you are looking at the things. Question for all of Sir, you. अभी solve करना है, Just sir. you have to solve it now and you can write your answer in chat box also or anywhere. See, the question is 0.001. All three are having bar. 0.001 bar. You have to write it in the form of P upon Q. इसको P by Q की form में लिखना है. Just you can write your answer in chat box or anywhere. एक बार देखेंगे इसको भी ना हम करेंगे. एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001. ऑल थ्री आर हैविंग बार. देखो, if there is no digit without bar after the decimal, there is no digit without bar. कोई भी digit without bar नहीं है. So we can directly take it as first equation. ये चीज ध्यान रखना है. If there is no digit after the decimal, if there is no digit without bar, okay, now you will take it as first equation. Then how many digits with bar is there? 3 is there na. So we 3, will be sir. multiplying both sides by multiplying 1000. both sides, 5,000. both sides by 1000. We will multiply 1000. So it will be x into 1000. It will be 1000x. 1000x will be equal to what? 0.001 is there na. So it will be 1.001 bar. So this will be our second equation. Now you can subtract the first one from second. So after subtracting, you will first from second. 1000x minus x, it will be 999x, and it will be equal to 1.001 bar minus 0.001 bar. It will be equal to 1. So x will be equal to what? 1 upon 999. So this is your answer. ये answer आना चाहिए 1 upon 999. Now we will be talking about our third case. Third case is when we are having non-terminating and non-repeating one. Okay, so let us start with that one. Non-terminating and non-repeating वाला जो केस था ना हमारा, non-terminating, non-repeating. ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले केस में देखो, इस वाले केस में ना हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर आते हैं. 0.151617. अब देखो, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है. सो दैट मीन्स व्हाट? ना तो हम इसके डेनोमिनेटर में 0 लगा सकते हैं ना हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं. We can't do both Yes, the sir. things. दोनों ही नहीं कर सकते. So that means what? We cannot write it in the form of P upon Q. हम इसको P Q. by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. हमने टर्मिनेटिंग वाले को भी लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो रिपीट हो रहा था, रिपीटिंग वाले को लिखा हमने, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो था बट रिपीट हो रहा था, उसको भी हमने P by Q में लिखा. हमने टर्मिनेटिंग वाले को भी P by Q लिखा. इस वाले के नीचे तो डायरेक्ट जीरोज ले लेते हैं,
इस वाले के नीचे क्या, इसको हमने एक्स एज्यूम बार। करके लिखा, बट देयर इज नो वे दैट वी कैन राइट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर इर्रेशनल नंबर। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सो इर्रेशनल आर दोज विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हम इनको। सो अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो दैट मीन्स व्हाट, we will say that these irrational are numbers. irrational numbers. Irrational So numbers. these three cases you should remember. If terminating is there, you can write. If non-terminating, repeating is there, still you can write in the form of P upon Q. But third case, non-terminating, non-repeating, you can't write in the form of P upon Q. So now moving to our next topic, that is ऑन नंबर लाइन। ओके, हम रिप्रेजेंट करते हैं, बचपन से सीखते हुए आते हैं हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना कैसे करना है नंबर लाइन पे। हाँ, वही चीज़ें हम लोग सीखेंगे अब फिर से। सो रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, मैं सारे एग्जांपल्स तुम लोगों को यहाँ पे दूंगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को। आइदर द नंबर इज इन डायरेक्ट फॉर्म, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कैसे करते रहते हैं हम लोग, वही सारी चीज़ें करेंगे हम रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। देखो इसमें क्या होता है ना, तुम लोग बहुत बचपन से सीख जाते हो एक नंबर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, सपोज आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग फॉर यू, एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, दिस वन, this is the number line suppose we are having, we are taking arrows because it can extend on both sides na. Now if I am writing 0 1 2 3 4 5, okay, like this, then this side -1, you know this thing, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, नाउ देखो अगर तुम लोगों को कोई नेचुरल नंबर, इंटीजर कुछ भी रिप्रेजेंट करना होता है वो तुम बहुत सिंपली कर सकते हो। अगर तुमसे कोई बोल दे कि बेटा इस पे ना 2.4 या 2 रिप्रेजेंट करो या -2 करो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इजीली मार्क कर दोगे, सर दिस इज -2, दिस इज 2, दिस इज 3, लाइक दिस, है ना। यस। बट द थिंग इज, सिचुएशन कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती है, when we are having something in rational form। rational वाला भी तुम लोगों को आता है, in 7th standard I taught you this thing। if you are given with 2/5 और 3/5, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, जस्ट यू विल राइट सम नंबर्स, तुम नंबर्स लिख लोगे 1 2 3 एंड यू विल टेक डेनोमिनेटर, सबके नीचे क्या ले लोगे, डेनोमिनेटर, इस तरह से, ठीक है, एंड यू कैन रिप्रेजेंट, इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर ये रहा 2/5। दैट मीन्स व्हाट, रैशनल नंबर्स अगर कोई भी है पी बाई क्यू की फॉर्म में, दिस नंबर ऑल्सो यू कैन ईजिली रिप्रेजेंट, बहुत ईजिली तुम लोग कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी ऑन नंबर लाइन, P by है Q। ना। सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट -2/5, सो यू विल राइट -1/5 -2/5 -3/5। ओके, सो दिस ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट ईजिली, वेरी ईजिली ऑन नंबर लाइन कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, अगर डेसिमल वाले नंबर हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सपोज यू आर हैविंग 3.5, यू विल से सर बिटवीन 3 and 4 वी आर हैविंग, विद द रूलर यू कैन ईजिली सी, तुम रूलर से देख सकते हो सर दिस इज 3.5, है ना, ये भी तुम कर दोगे। बट इफ यू आर हैविंग 4.1, दिस यू कैन रिप्रेजेंट हियर, सर इट इज 4.1। बट अगर रिपीटिंग वाला आ गया 3.11 1 like this it is moving, or 3.27, then 7 it is going like this। अगर ऐसे रिपीटिंग वाले आ जाते हैं तब तुम लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये तो रिपीटिंग हो रहा है ना, ये तो हम लोग ऐसे बोल ही नहीं सकते कि मैं यहाँ पे 3.27 को रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि 27 वो है ही नहीं, इट इज नॉट 27 ओनली, इट इज 3.2777, दैट मीन्स दिस 7 इज हैविंग व्हाट, बार 3.27। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस काइंड, ऐसे वालों को कैसे करना है, देखो इसके लिए ना एक प्रोसेस फॉलो होता है, ध्यान से समझना। जब हमारे पास रिपीटिंग वाला आ रहा है, मैं रिपीटिंग वाला पहले करा रहा हूँ, तो कैसे करना है, यू विल ड्रॉ नंबर लाइन फर्स्ट। ओके, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लो एक्स्ट्रा, इसका रीजन मैं बताऊंगा तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्यों करते हैं। देखो फर्स्ट थिंग इज,
हम इसमें यूज करते हैं, जो टॉपिक हम यूज कर रहे हैं ना, टू रिप्रेजेंट दिस वन, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये वाले रिपीटिंग वाले हैं। रिपीटिंग वालों को जब हमें किस पे, ऑन नंबर लाइन, इफ रिपीटिंग डेसिमल वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, देन वी यूज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आई विल राइट इट हियर फॉर यू, दैट इज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। दिस इज द टॉपिक वी यूज। ये टॉपिक यूज किया जाता है। कब यूज करना है? व्हेन यू आर हैविंग रिपीटिंग वाला, जब तुम्हारे पास रिपीटिंग वाला Repeating आएगा ना, decimal. तब करना है ये वाला सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कैसे करना है? सबसे पहले इधर देखो, व्हाट आर यू गिवन विद 3.27 बार। दिस इज यू आर गिवन, हाँ 3.27 बार, दिस इज यू आर गिवन विद, सपोज है ना 3.27 बार। सो फर्स्ट यू विल सी द फर्स्ट डिजिट, दैट इज 3। ओके 3 है ना, तो तुम क्या करो यहाँ पे ना, सबसे पहले इधर लिख लो 3 और इस साइड में यहाँ पे लिख लो 4। क्यों लिखा है मैंने 3 और 4 इधर? क्योंकि देखो हमें ये पता है बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के कहीं बीच में हमारे पास क्या आएगा? 3.2 आएगा। 2. Okay, so I can 3.2. take it like this, that is 3.1, this is 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, okay, then 3.5, then 3.6, then 3.7, 3.8 and 3.9. Okay, it will be like this, 3.9 up to 3.9. देन अब देखो हम लोगों को एक और चीज पता होनी चाहिए। हमें पता है दिस इज 3.2 वी आर हैविंग, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तुम्हारे लिए, ये है 3.2, दिस इज 3.2 एंड दिस इज व्हाट 3.3। बिटवीन 3.2 एंड 3.3 हमारे पास क्या आएगा? 3.27 3.27 आएगा 3.2 एंड 3.3 के बीच में। तो मैं यहाँ से देखो एक एरो ऐसे लगाऊंगा और एक 3.3 से एरो लगाऊंगा। 3.2 से मैंने एक एरो लिया और एक एरो कहाँ से लेना है? 3.3 से। 3.3 और यहाँ पे से। लिखना है कुछ इस तरह से 3.2 3.21. 2 से स्टार्ट करना है, 3.20 ओनली 0, हाँ। देन 3.21, then 3.22, then 3.23, then 3.24, 24, okay, then 25, then 3.26, 26, okay, 3.26, then 3.27. 3.27, 3.28, ऐसे करते हुए जाना है, ठीक है। 3.27, 3.28, okay, I'll extend it further, हाँ 3.29 एंड 3.30, ठीक है। ये वाली जो एरो है ना तुम्हारी, इधर एक एरो है ये वाली, ये इधर आनी चाहिए 3.30 पे, ठीक है। अब क्या करना है देखो, इसको ना तुम लोगों को पता है 3.27 ये रहा, ये क्या है 3.27 और ये क्या है 3.28। देखो 3.27 3.28, लेकिन हमारी स्टोरी जो है वो 3.27 पे खत्म नहीं हो रही है। 3.27 पे ये खत्म Sir, नहीं हो रहा 7 और है, because extend it is पे बार है। again बार। 3.2777। सो एक बार और करेंगे हम, यहाँ पे एक बार और ऐसे लेके जाएंगे 3.27 और 3.28, इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या मिलेगा? 3.277 मिलेगा, ठीक है। तो एक बार और एक्स्ट्रा कर देना है, बस एक बार और एक्स्ट्रा करके और छोड़ देना है, क्योंकि हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। वी कांट कंप्लीट इट, हम कंप्लीट नहीं कर सकते इसको, ये आगे आगे आता चला जाएगा। सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट। ये एक सक्सेसिव Sir? मैग्निफिकेशन मेथड है, बट वन मोर मेथड इज देयर। मेरा आंसर कंप्लीट अभी तक भी नहीं हुआ है। 3.277 ये तो आगे तक चलेगा, तो एरोज लगा के और उसको सिंपली छोड़ दो, दैट मीन्स ये कंप्लीट नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वहीं पे समझ आ जाएगा। इफ दे आर नॉट आस्किंग अबाउट एनी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन,
ठीक है, और तुम्हें उन्होंने बोला कि तुम रिप्रेजेंट करो 3.56 बार को नंबर लाइन पे, 3.56 बार को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, बट डोंट यूज, उन्होंने सक्सेसिव बोला ही नहीं है, वो वर्ड ही नहीं बोला है, तो तुम लोगों को ना पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है, करना भी मत। ओके, देन व्हाट यू विल बी डूइंग, फर्स्ट कन्वर्ट इट, इसको कन्वर्ट कर दो, किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में। ये मैंने तुम लोगों को अभी सिखाया है, हाउ टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ पी Yes, बाई sir. क्यू। और अगर तुम पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लोगे, देन हियर राइट 0, देन सपोज मान लो इसका आंसर ना, जस्ट एज्यूम कि मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 353 बाय 900 समथिंग, ये आंसर आ रहा है 3 बाय 900। तो तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक चीज तो तुम लोगों को क्लियरली पता है कि ये हमारा नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड आएगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है वो। ओके, Yes, sir. देन सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें डिवाइड, देखो अब तुम 1 2 3 4 लिखने बैठोगे ना अगर 353 तक, तो फिर तो पेपर में बस यही चेक करूंगा मैं, बाकी और कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम भी कुछ नहीं करके जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, 0 के बाद डायरेक्ट इधर 100 लिखो, ठीक है, देन 200 लिखो, देन 300 लिखो, एंड देन 400, सपोज दिस इज 400। नाउ in between 300 and 400 you will be having what, 350। ओके, 350। इस 350 से ना जस्ट आगे वाले पॉइंट को और उसके बीच वाले पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट कर दो, 353 बाय 900, और इन सबके नीचे भी 900 लगाना है, सबके नीचे ऐसे, क्योंकि वो सबके नीचे होता है रैशनल फॉर्म में, ये सिखाया था मैंने 7th में भी। तो ये करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये कब करना है, इफ दे आर नॉट आस्किंग फॉर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अगर उन्होंने सक्सेसिव बोल दिया तो ऊपर वाला मेथड करना है, और नहीं बोला है तो नीचे वाला, ये वाला करना है, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करके।